Hello everyone, hope you are doing good. Today we are going to discuss about the various system of classification of angiosperms. The notes regarding the same has already been shared on the university website. You can take it from there. So let's start today. So basically there are three system of classification so far the angiospermic classification is concerned. One is artificial, second one is natural, and last one is phylogenetic. We can also classify these three system of classification based on the discovery of Darwin. Darwin, as you all know, is the study of Darwin is related to evolution and evolutionary histories. So basically, those classification which were given before the discovery of the Darwin are known as pre-Darwinian system of classification, and those who were given after the post-Darwinian classification are known as post-Darwinian system of classification. As you can see, a clear distinction that the pre-Darwinian system of classifications doesn't take account of the system of evolution or the system of phylogeny. So the pre-Darwinian system of classification, they are artificial as well as natural. However, you can see a clear-cut influence of evolution, clear-cut evolution of phylogeny while going in the post-Darwinian system of classification. It means जो डार्विन की डिस्कवरी है दैट इज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. जो डार्विन की डिस्कवरी से पहले के क्लासिफिकेशन होंगे दे विल नॉट टेक अकाउंट द इवोल्यूशन एंड फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल. और उसके पहले या उसके जो बाद के जो डार्विन की क्लासिफिकेशन आएंगे आप देखिए वो नाम से क्लियर है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट मींस they are taking the evolution as well as phylogeny into consideration. So देखो artificial system of classification means classification which are based on only on one or two character. ठीक है, यानी जो artificial system of classification है उसमें जो साइंटिस्ट वर्क कर रहा होता है क्लासिफिकेशन के लिए वो एक टाइम में एक या दो कैरेक्टर, सपोज नंबर ऑफ पेटल, नंबर ऑफ सेपल्स, कंडीशन ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ एंथर, ऐसा कोई भी एक या दो कैरेक्टर के साथ ही स्टार्ट करते हैं और पूरे प्लांट को क्लासिफाई करते हैं. लेकिन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं होता. वो कई सारे दे टेक नंबर ऑफ कैरेक्टर साइमल्टेनियसली व्हाइल क्लासिफाइंग द प्लांट. और जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है. देखो जो मेजर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो आपके सिलेबस में जो है वो है बेंथम एंड हुकर. ठीक है, और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है जैसे लीनियस, बेसिक, दे आर वेरी बेसिक. ठीक है, so we'll start from Bentham and Hooker system of classification, which is an example of artificial system and pre-Darwinian in concept. So basically this is sort of history. आप just एक look लेना इसका. This is a very important book, System Naturae and Genera Plantarum. They all belong to Carolus Linnaeus. Cis Plantarum is another important book. और फर्स्ट टाइम इसने इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का डिस्क्रिप्शन दिया था कैरोलस लिनियस ने. और नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा. सो देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली लिनियस, जेसी एंड एडमसन. कुछ इसके डिमेरिट्स हैं नेचुरल सिस्टम्स की, आप वहां यहां से देख लेना, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, also known as Bentham and Hooker system of classification, they give a very prescribed and useful system of classification. और उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को बेसिकली जो सीड्स प्लांट हैं इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को अपने क्लासिफिकेशन इंक्लूड किया था, which was a demerit of it. उन्होंने पूरे एंजियोस्पर्म्स को 202 फैमिली में, 7569 जेनरा में और 97,205 स्पीसीज में डिवाइड किया. उन्होंने अपनी पूरे वर्क को 3 वॉल्यूम में विद द नेम ऑफ जेनरा विद प्लांटेरम पब्लिश किया. तो आपको याद क्या रखना है कि द नेम ऑफ बुक ऑफ बेंथम एंड हुकर वाज जेनरा प्लांटेरम. ठीक है, और इन्होंने जो हुकर है ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने लिखा हुआ है फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया. मतलब जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब ये आए थे एज अ बॉटनिस्ट और उस टाइम की वेजिटेशन का डॉक्यूमेंटेशन किया है विद द नेम फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो देखो बेसिकली उन्होंने इंटायर सीड प्लांट्स को, जितने भी सीड प्लांट है उनको 3 क्लास में डिवाइड किया, 3 सब क्लासेस में, 21 सीरीज और 202 ऑर्डर में. ठीक है, जैसा कि वो पता होगा ये प्री डार्विनियन इन कंसेप्ट होगा. क्यों? क्योंकि ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है.
तो इनका पूरा क्लासिफिकेशन देखो। सबसे पहले पहला क्लास जो था डाइकोटिलेडन्स, मतलब टू कोटिलेडन्स। रूट कैसी होगी इसमें? टैप रेटिकुलेट वेनेशन होगा। पेंटामरस एज वेल एज टेट्रामरस वेरिएंट। पेंटा मींस 5, टेट्रा मींस 4। अब डाइकॉट के अंदर देखो इन्होंने 3 सब क्लास में इसको डिवाइड किया, पॉलीपेटैली, गैमोपेटैली, एपिटैली। पॉली मींस फ्री, पेटल्स मींस एज यू ऑल नो पेटल, ठीक है, कोरोला का इंडिविजुअल यूनिट। इसमें क्या होगा कि सारे के सारे पेटल्स फ्री होंगे। ये जो पूरा सब क्लास है डाइकॉट का, जो पहला सब क्लास है पॉलीपेटैली, उसमें पेटल्स फ्री होंगे। इसको इन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया, थैलीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। थैलीफ्लोरी और डिसिफ्लोरी दोनों में सुपीरियर ओवरी होगी, ठीक है, और कैल्सीफ्लोरी में इंफीरियर ओवरी होगी। डिसिफ्लोरी का नाम डिसिफ्लोरी है क्योंकि इसमें आप देखोगे ओवरी के नीचे एक छोटा सा आपको बेस पे डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। आप नींबू या लेमन जैसा कि आप जानते हो, उसके कभी फ्रूट्स को देखना तो नीचे आप देखना ऐसे फ्रूट्स होगा, तो उसके नीचे यहाँ पे छोटा सा डिस्क दिखेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई द सीरीज इज नोन एज डिसिफ्लोरी। आपको सिर्फ सीरीज तक याद रखना होता है। सो क्लास 1 डाइकॉट में पहला जो सब क्लास है पॉलीपेटैली, वो 3 सीरीज है, थैलीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी। थैलीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी दोनों में सुपीरियर ओवरी होता है, कैल्सीफ्लोरी में इंफीरियर ओवरी होता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विच इज द फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट फैमिली ऑफ Bentham system of classification. So the first subclass is Polypetalli, first series is Thalmiflory, first order is Ranunculales and family will be Ranunculaceae. तो ये आप याद रख लेना कि जो Bentham system of classification है उसके अकॉर्डिंग जो पहला ऑर्डर है वो है Ranunculales और जो पहली फैमिली वो है Ranunculaceae। दूसरा जो सब क्लास है आप देखो Gamopetalli। Gamo means fused, पेटल मतलब इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोरोला। तो देखो पॉली के केस में ऐसे रहेगा फ्री, ठीक है, दिस इज पॉलीपेटैली, यानी सारे के सारे पेटल्स फ्री। बट गैमो के केस में दे ऑल विल बी फ्यूज्ड। दिस इज पॉलीपेटैली एंड दिस इज गैमोपेटैली, ठीक है। तो गैमोपेटैली को हमने 3 सीरीज में डिवाइड किया, इन्फेराई, हेटेरोमेराई, बाइकार्पेलिटी। इन्फेराई नाम से क्लियर है, ओवरी विल बी इंफीरियर, और हेटेरोमेराई में सुपीरियर होगा, और जो नंबर ऑफ स्टेमन होगा वो कोरोला का नंबर जो होगा उसका जस्ट डबल होगा। इट मींस पेंटामरस फ्लावर है तो नंबर ऑफ स्टेमन विल बी 10। और बाइकार्पेलिटी में ओवरी सुपीरियर होगा और स्टेमन इक्वल होगा टू द नंबर ऑफ कोरोना लोब। देखो अब तक देख रहे हो कि बेसिकली इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे वर्क कर रहा है, ओवरी, कोरोला, स्टेमन। दैट्स व्हाई द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो थर्ड जो इनका सीरीज है मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। मोनोक्लेमाइडी को उन्होंने क्या किया, बेसिकली टोटल 8 सीरीज में डिवाइड किया। कर्वेम्ब्री, मल्टीओलेट एक्विटिका, मल्टीओलेट टेरेस्ट्रिस, माइक्रोएम्ब्री, डेफिनल्स, ऑर्डिनस एनामलिस, एक्लेमाइडोस्पोरी एंड यूनिसेक्सुअल्स। बेसिकली इसमें जो सीरीज नंबर 6 है ऑर्डिनस एनामली, ये एक असेंबलीज है पूरे प्लांट्स का, ऐसे प्लांट जिनको वो कहीं भी प्लेस नहीं कर पाए, ठीक है, कहीं भी प्लेस नहीं कर पाए, उनके अकॉर्डिंग कहीं फिट नहीं बैठा, उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। ये इनका एक डिमेरिट्स भी था कि भाई आप एक कैसे आर्टिफिशियल असेंबलीज कैसे बना सकते हो, ठीक है। देखो इनका दूसरा डिमेरिट्स, उन्होंने डाइकॉट किया, डाइकॉट के बाद दूसरा जो क्लास रखा वो जिम्नोस्पर्म्स, और फिर तीसरा मोनोकॉट। बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, so your system of classification should be entirely focused on monocot as well as dicot. Placing the gymnosperms between dicot and monocot it was a demerit of Bentham system of classification. तो उन्होंने जो दूसरा क्लास था जिम्नोस्पर्म्स रखा। जिम्नोस्पर्म्स मैंने आपको डिटेल सेमेस्टर 1 में पढ़ाया हुआ है, उसमें 3 जो बेसिकली फैमिली एनिटेसी, सैगिडेसी एंड कोनिफेरेसी, ठीक है। बेंथम ने भी वही फॉलो किया। और जो लास्ट उनका क्लास था वो था मोनोकोटिलेडन्स, और इसमें इन्होंने 7 सीरीज रखे मोनोकॉट में, माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनी, कैल्सिनी, न्यूडिफ्लोरी, एपोकार्पी, ग्लूमेसी, ठीक है। ग्लूमेसी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है ग्लूम्स प्रेजेंट होगा। ग्लूम्स मतलब ऑन एंड लेम्मा लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बेसिकली जो फैमिली आपकी पोएसी है, जिसका मेंबर है आपका ओराइजा सटाइवा, और ये गेहूं हुआ, जौ हुआ, जितने भी फूड ग्रेन्स हैं उसमें आप देखो ना कि सीड्स के बाहर एक कवरिंग होती है पूरी ग्लूम्स, ठीक है। और जो बेसिकली कैरेक्टर था देखो माइक्रोस्पर्मी में ओवरी इंफीरियर होगी, कोरोनी में सुपीरियर ओवरी होगा, कैल्सिनी में क्या होगा कि पेरियन जो होगा वो सेपोलायड होगा। पेरियन सेपोलायड, पेरियन क्या होता है, क्या होता है पेरियन, व्हेन
कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड हो जाए, ठीक है। अपोकार्पी, अपो मीन्स फ्री, ठीक है, एंड कार्पल एज यू ऑल नो, अपोकार्पल, अपो मीन्स फ्री, कार्पल, कार्पल फ्री। So this was the system of classification given by Bentham and Hooker. तो मेरिट्स देखो कई सारे इसकी हैं कि दिस इज वेरी सिंपल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला अटेम्प्ट किया गया जिसमें इतना प्रॉपरली स्टडी किया गया, और एक्सपेरिमेंट और फील्ड में आइडेंटिफाई करना इसके बेसिस पे और आसान है। इसीलिए जो इंडिया की मेजर हर्बेरिया है, जैसे बीएसआई कोलकाता, एनबीआरआई लखनऊ, इन सब में जो हर्बेरिया लगा हुआ है वो इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करता है। तो दे आर द मेरिट्स। बट अब डिमेरिट्स देखो, कीपिंग जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जैसे मैंने बताया था कि मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में ये जिम्नोस्पर्म्स कहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो मोनोक्लेमाइडी रखा था ना उन्होंने, आप यहाँ पे देखो मोनोक्लेमाइडी जो है ये पॉलीपेटालिक गैमोपेटालिक, इसी को एक क्लेमाइडी बोलते हैं या मोनोक्लेमाइडी बोलते हैं। ये पूरा जो ग्रुप ही है ना, ये एक आर्टिफिशियल असेंबलेज है। तो यहाँ पे वही मेंशन है कि monoclamidy is an unnatural assemblage keeping a family with single wall of perianth and family without perianth, although they are showing similarity with polypetally family is justified, ठीक है। आप कैसे रख सकते हो कि अलग अलग कैरेक्टर्स हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को आपने टारगेट रखा और उसी बेसिस पे सारे के सारे कैरेक्टर्स को नेग्लेक्ट करते हुए आपने मोनोक्लेमाइडी में रख दिया, ठीक है। जो तीसरा डिमेरिट्स है, फैमिली लिलिएसी एंड एमरलिडेसी हैव बीन सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी एंड केप्ट इन डिफरेंट सीरीज ऑल्दो दिस शो सिमिलरिटीज। फैमिली लिलिएसी है और एमरलिडेसी है, इनमें सारे कैरेक्टर में सिमिलरिटी है एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ ओवरी, सुपीरियर ओवरी। तो इन्होंने जैसा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया था, सपोज इसने सिर्फ ओवरी को कंसीडर किया था, इसलिए इन्होंने अलग अलग रख दिया। लेकिन ओवरऑल आप जब लिलिडेसी और एमरलिडेसी की फैमिली को स्टडी करोगे तो पाओगे कि अप्रोक्सीमेटली वो 99% सिमिलर है, ठीक है, एक्सेप्ट ओवरी में। तो उनको अलग अलग प्रेडिक्ट करना क्या जस्टिफाइड है। और मोनोक्लेमाइडी एक असेंबलेज डाइकॉट में तो था, फिर यही पैटर्न उन्होंने मोनोकॉट में क्यों नहीं फॉलो किया। सो दैट वाज अनदर डिमेरिट। सो इसके बाद आता है पीरियड ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जब आप स्टडी करो, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट विल बी एंगलर पैंटल, हचिंसन, डायग्राम थॉर्न, कॉन्क्विस्ट। उससे पहले आप एक बार इस लेक्चर को जरूर क्लियर कर लेना। चलो, थैंक यू।